Am I audible? Please confirm. Good afternoon, sir. Good afternoon. Am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. So let's wait for 1 or 2 minutes, then we will start the class. ओके सो ऑनलाइन स्टूडेंट लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था आप लोगों को? प्लीज कंफर्म. एनीवन? Am I audible? Please confirm. Yes, sir. Okay, so what I taught last time? सर वेब के बारे में बताए थे और इंटरनेट. Yes. So I think I taught you some important points. That is, what is internet? What is www? What is URL? You know? Yes, sir. Yes. Okay. So let's discuss some important point today. So first of all, I would like to take attendance. Or otherwise, we will take in last. Okay. 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 So let's start. So today, Afternoon, sir. good afternoon, everyone. Good afternoon. So let's discuss now. Only 4 students are there. Okay, so let's start. Which roll number is online? So let's take attendance. So roll number, only 3 students are online, no? Yes, okay. So roll number 12, 4, and 13, including you. Okay, okay. So you are offline. So what is your roll number? 13. Okay. So let's start the students. So till now we had discussed about some important points, that is so now let's discuss about वेब ब्राउजर. ठीक है बच्चों, हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे? वेब ब्राउजर के बारे में. सो व्हाट इज वेब ब्राउजर? प्लीज कंफर्म. क्या होता है वेब ब्राउजर बच्चों, बताना. Still students are joining. So now 7 students are there, including. Good afternoon, sir. Good afternoon.
Okay. So I think the students are joining right now. So let's wait for 1 or 2 minutes, then we will start the class. Clear, everyone? So till now, you have any doubt, then you can ask. No, sir. So previous class से कोई भी doubt होगा आप पूछ सकते हो, ठीक है? So roll number 1 is present. Yes, roll number 1. Yes, sir. Okay, roll number 2, 3, roll number 4, roll number Yes, 4. 4. Okay. So roll number 5, roll number 5, 6, roll number 6. Present, sir. 6. Okay, roll number 6. Roll number 7, Yes, sir. roll number 8, roll number 9, 10. Yes, sir. 10. Okay, 10, 11, 12. Present, sir. 12. Okay, 13, 14. Only this much. Okay, so I think now 8 students are online. So let's start the class now. Okay. So if anyone try to join, please let me know. Okay. So I am sharing my screen. So is it visible? Please confirm. Yes, sir. Okay. Yes. So what is Visual, web browser? sir. Yes, sorry. No, sir. Visual, sir. Okay. So let's start the class now. So focus on web browser. So you know what is web browser? Anyone? Any idea about this? Any student from online or offline? As I think that you are also using this software or this web browser. Then tell me what is web browser? If you are using this software, then what is it? Why we use web browser? From online student as well as offline students. Yes, Rajesh. सर वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर जो किसी भी से कनेक्ट करने को उपयोग किया जाता है. Yes. Okay. Or next one. Next student. So tell me any idea about web browser? आपके पास कोई आइडिया है इसके बारे में? कुछ भी जानकारी है, नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इसके बारे में सुना तो जरूर होगा, इवन आप लोगों ने यूज भी किया होगा और यूज कर भी रहे होंगे अभी आप, ऐसा ना? यस सर. तो एक्चुअली होता क्या, देखिए समझ लीजिए, कोई बात नहीं है ना, ध्यान सुनिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना? वेब ब्राउजर क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर। अब सिंपली देखिए, सिंपल सी बात, आपने देखा होगा एयरपोर्ट के बारे में सुना है आप लोगों ने? एयरपोर्ट क्यों यूज करते हैं हम लोग? व्हाई वी यूज एयरपोर्ट? Yes, why we use airport? Because एक प्रॉपर प्लेस होता है जहां पे एयरप्लेन्स क्या है, का स्टॉपेज होता है, यानी, है ना, ऐसा कह सकते हैं। और कहीं आप देखते हो कभी एयरप्लेन को रुकते हुए? नहीं ना, लैंड करते हुए कभी नहीं देखते हो। एक प्रॉपर प्लेस होता है जहां पे उसका पूरा सेटअप होता है और वहीं पे वो क्या कर सकते हो, उस प्लेन को आप लैंड कर सकते हो। सिमिलरली जैसे आप रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म होता है, जब भी कोई ट्रेन रुकेगी तो उसी प्लेटफॉर्म पे रुकेगी, उस प्लेटफॉर्म से आगे और अलग बात है, एक्सेप्शन के बीच में कहीं वैक्यूम हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जनरल रुकती वहीं पे। वैसे ही हर एक चीज का क्या हो, जैसे बस स्टैंड होता है, वैसे ही मान लेते हैं हम इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं ना, बहुत सारे सर्विसेज को, ईमेल एक्सेस करते हैं, वेबसाइट एक्सेस करते हैं, वेब पेजेस ओपन करते हैं, बहुत सारी चीजों को हम लोग एक्सेस करते हैं इंटरनेट के हेल्प से। तो आखिर उसको इंटरनेट के सर्विसेज को यूज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक सॉफ्टवेयर, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना? यस और नो बच्चों, बताना, यस और नो? Yes, sir. एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सो दैट प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। एक्चुअली में ये क्या होता है बच्चों? सॉफ्टवेयर होता है। सो इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू होस्ट और नेविगेट द वेब पेजेस और वेबसाइट्स, यानी जिसका यूज हम करते हैं अपने कंप्यूटर में वेब पेजेस को, वेबसाइट को या कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यस और नो? क्लियर है? बताना। यस सर. ओके। अदर कभी देखो, जैसे आपको कभी बच्चों जब आप क्लास 7-8 में होंगे या अंडर 10,
आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले होंगे स्कूल में कि जैसे आपको गांधी जी का फोटो सर्च करना है या गांधी जी के बारे में कुछ लिखना है आपको, है ना, ऐसा कुछ पैराग्राफ लिख के लाना होगा या किसी टॉपिक के बारे में, तो जनरली आप क्या करते होगे, गूगल सर्च करते होगे ना। तो कहने का मतलब तभी कर सकते हैं ना गूगल सर्च या कोई भी इंफॉर्मेशन तभी सर्च कर सकते हैं जब हमारे पास एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सो दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड वेब ब्राउजर। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वेब ब्राउजर? एनीवन प्लीज? कितने नाम को आप जानते हैं, कौन कितने वेब ब्राउजर को आप जानते हो? ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज। यस, तो ऐसे बहुत सारे, बिल्कुल। अभी देखिए आजकल बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं, जैसे आप अलग अलग मोबाइल परचेज करोगे ना, हर मोबाइल का अपना एक वेब ब्राउजर होता है ना। जैसे Yes, आप sir. रेडमी यूज करते हो, रेडमी का अलग वेब ब्राउजर आता है। आप यूज करो वीवो का, उसका अलग आएगा, ओप्पो का अलग आएगा, है ना। उसके अलावा जो कुछ ऐसे वेब ब्राउजर्स हैं जो हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? जैसे गूगल क्रोम आपके मोबाइल में भी अवेलेबल है, Yes, sir. मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा मिनी। ओपेरा जो कि सिस्टम में यूज करते हैं, ओपेरा मिनी मोबाइल में यूज करते हैं। दिस आर द वेब ब्राउजर। सो चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। विजिबल होगा आपको स्क्रीन बच्चों? अभी देखो Yes, sir. विजिबल होगा, मैं आपको शो कर रहा हूं। चलिए ये क्या है, ये जो मैंने बताया आपको, ये क्या है? वेब ब्राउजर ओपन है। अभी मैंने क्या किया, वेब ब्राउजर ओपन किया है। कैसे ओपन करते हैं आपको पता है, डबल क्लिक करना है जहां भी आपको दिखे। अभी देखो मैं आपको अपना स्क्रीन आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, मैं अपना स्क्रीन शो कर रहा हूँ आपको। विजिबल है स्क्रीन सबको? अब यहाँ पे आप Yes, sir. देखोगे मैंने कौन कौन सा वेब ब्राउजर इंस्टॉल करके रखा है, बताओ। Chrome, sir. यस, क्रोम, गूगल क्रोम मैंने यूज कर इंस्टॉल कर रखा है। माइक्रोसॉफ्ट एजेस जो आजकल बाय डिफॉल्ट आपके विंडोज 10 में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों मैंने मोजिला फायरफॉक्स हमने यूज कर रखा है, यस और नो? मोजिला फायरफॉक्स। सो दिस आर व्हाट, दिस आर द सॉफ्टवेयर। सो ऐसे जब यूज करना होगा आप डबल क्लिक करोगे, यस और नो? क्लियर? तो चलो मैंने डबल क्लिक करके ओपन कर रखा है, ये हमारा क्या है, वेब ब्राउजर। नाउ अब इस वेब ब्राउजर में हम क्या करते हैं, कुछ भी सर्च करना हो हम या तो यहाँ पे टाइप करेंगे या तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं, यस और नो? और ये बहुत सारी जो कंपनी है वो अलग अलग अपने वेब ब्राउजर को प्रोवाइड करती है। जैसे आपने सुना होगा गूगल क्रोम गूगल का है, वैसे ही मोजिला फायरफॉक्स है, बहुत सारे जो हैं आपके ब्राउजर्स हैं। तो अब ब्राउजर्स का ऐसा लुक एंड फील होता है, जनरली आप देखो कुछ चीजें आपको हर एक ब्राउजर में कॉमनली मिलेगी। चाहे आप गूगल क्रोम यूज कर लो, चाहे आप ओपेरा यूज कर लो, चाहे आप एज यूज कर लो, चाहे आप कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करो या फायरफॉक्स मोजिला, ठीक है। तो आप जाओगे किसी भी ब्राउजर को देखोगे तो वहां पे कुछ चीजें कॉमन मिलेगी आपको। वो क्या क्या चीजें हैं, यानी कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो टॉपिक दीजिएगा बच्चों, कंपोनेंट्स, है ना। कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, वेब ब्राउजर, मतलब उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सो देखिए मैं विजिबल होगा बताना है, ये क्या है, आपके कंपोनेंट्स हैं, विजिबल है बच्चों। सो जनरली क्या होता है, आप देखिए इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये देखो सबसे पहला चीज तो हम यहाँ पे ऊपर में देखते हैं, ये सबसे फर्स्ट आपको दिख रहा है, विजिबल है बच्चों? Yes, sir. तो विजिबल है, ये क्या है? अच्छा ये बच्चों इतने लेट से क्यों ज्वाइन करते हो आप लोग? एटलीस्ट मैंने बोला है 2:10 से क्लास है, तो 2:15 तक आप लोग ज्वाइन हो जाओ, है ना। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा इसको। अब देखो ये क्या है, ये हमारा, गुड आफ्टरनून सर। यस गुड आफ्टरनून। क्लियर? देखो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो सबसे ऊपर आप एक स्ट्रिप देख रहे हो, ये जो आपको लाइन दिख रहा है बॉर्डर टाइप का, ये क्या है, इसको टाइटल बार कहते हैं हम लोग। दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। क्लियर है? टाइटल बार क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई टैब कुछ भी सर्च करोगे तो देखो इसका यहाँ पे क्या मैंने ओपन कर रखा है, क्या चीज, सपोज मैंने यहाँ पे ओपन किया सीमेज, है ना, सीमेज। तो देखो सीमेज हमने ओपन किया वेबसाइट, तो उस वेबसाइट का जो नाम होगा, देखो यहाँ पे टाइटल दिख रहा है ना आपको, क्या दिख रहा है बच्चे, वेलकम टू सीमेज, ये आपका टाइटल बार हो गया। ऐसे आप जितने भी टैब, है ना, तो ये टाइटल बार मतलब हमेशा टाइटल बताता है, जिस भी पेज को आप ओपन कर रखे हो टैब में, उसका ये टाइटल मतलब बताएगा। क्लियर है बच्चों? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके ओके। सो अब नाउ ये सब क्या है, ये जो अभी मैंने इस पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, अब मैं एक और टैब ओपन कर लेता हूँ, ये सब है क्या बताओ? इसको टैब बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? टैब।
क्लियर है? टैब बोलते हैं इसको। अब टैब क्या होता है? इसमें मतलब जैसे हम अलग अलग टैब ओपन कर सकते हैं, है ना। और इस टैब का जब भी कुछ सर्च करोगे इस टैब के अंदर उसका एक उस पेज का एक नाम यहाँ डिस्प्ले होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? टाइटल कहते हैं। और सिंस ये हर एक पेज का, हर एक टैब का क्या जो भी चीजें ओपन करते हैं उसका क्या शो करता है? टाइटल शो करता है। तो इसको टाइटल बार कहते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सुनो, यस सर। यस सर। टाइटल बार कहते हैं। अब देखो उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है? मिनिमाइज, रिस्टोर और क्रॉस, तीन चीजें दिख रही है राइट साइड कॉर्नर पे। विजिबल है बच्चों? विजिबल है ना? यस सर। यस यस सर। चलिए विजिबल है तो देखिए, विजिबल है आपको तो ये है क्या? ये है क्या बच्चों बताना? ये है आपका मिनिमाइज बटन। अब देखो मैं इस पे मिनिमाइज से क्या होता है, मैं क्लिक करता हूं यहाँ पे, क्या हो गया बच्चों बताना? मिनिमाइज हो गया ना स्क्रीन। मिनिमाइज। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज हो जाएगा। एक और देखो यहाँ बटन आपको दिख रहा होगा बच्चों, क्या है देखो? रिस्टोर। इसको क्या नाम है? ये दो काम करता है, इसमें दो चीजें हैं। एक रिस्टोर, मैं क्लिक देखो रिस्टोर करता हूँ। अब क्या है यहाँ पे? ये जो हमारा विंडो है मैंने ऐसा सेट करके रखा हुआ है, तो जब भी हम ओपन करेंगे तो रिस्टोर करेंगे तो ये अपने कस्टमाइज साइज में आ जाएगा जो मैंने कस्टमाइज किया है। अभी देखो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ऐसे। विजिबल है बच्चों? देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दिया ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखो फुल स्क्रीन किया। अब मैं फिर से देखो इसको क्या कर दिया मैंने? रिस्टोर किया, सेम साइज में आ गया ना। अब जो भी चेंज करोगे उसके हिसाब से ये कस्टमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अब देखो कस्टमाइज में अभी है। अब मुझे इसे क्या करना है? फुल स्क्रीन करना है। क्या करना है? फुल स्क्रीन मोड में करना है। तो क्या करें, कैसे करेंगे बच्चों? तो यहाँ पे आपने देखा मैक्सिमाइज बटन है ना? मैक्सिमाइज विजिबल है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट बताना यस और नो। यस यस सर। सर। दिस इज मैक्सिमाइज बटन। सो आप लोग वीडियो क्यों ऑफ रखते हो ये बताओ? व्हाई? क्लासेस में हो तो एटलीस्ट वीडियो ऑन रखा करो ना, सच दैट आई कैन सी दैट कौन से बच्चे हैं वहां पे प्रेजेंट, कौन से नहीं है, कौन समझ रहे हैं या कोई कौन से बच्चे कहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। सब लोग वीडियो ऑन रखा कीजिए। सो नेक्स्ट डे से ध्यान रखिएगा या अभी भी ऑन रखिए कि जब भी बैठे तो एक प्रॉपर प्लेस पे बैठे और वहां से आप वीडियो ऑन रखें। क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ ठीक है। अब देखो ये क्या है, अब अभी क्या ये कस्टमाइज व्यू में है हमारा ब्राउजर। मैं इसे मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा देखो फुल स्क्रीन हो गया ना। सो इट इज कॉल्ड मैक्सिमाइज। इट इज कॉल्ड मैक्सिमाइज। ठीक है बच्चों? ओके। सो नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज क्लोज बटन। So if you want to close this web browser, then what you will do? You have to click on that close button. That is cross symbol, you know. जब आप उस पे जाते हो रेड कलर हो जाता है ना, रेड इज समथिंग द साइन ऑफ डेंजर, यू नो। तो ये क्या है? आप क्लोज करना चाहते हो, देन यू विल प्रेस ऑन दिस क्रॉस बटन, दैट इज क्लोज। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. come to the below bar, that is what? एड्रेस बार। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ये जो आपको ब्लिंक कर रहा है दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एड्रेस बॉक्स। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एड्रेस बॉक्स। जहां पे हम एड्रेस किसी भी वेबसाइट को ओपन करना होता है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? जैसे हमने इस वेबसाइट को ओपन किया है, यस और नो, तो उसका ये एड्रेस है, वेबसाइट का यूआरएल है ना, यस और नो बच्चों? यस सर। और इसको हमने क्या किया है? इसमें लिखा है और देन जैसे देखो मैं इस पे क्लिक करूंगा वो वेबसाइट ओपन हो जाता है। सो दैट इज एड्रेस बॉक्स। क्या है ये? एड्रेस बॉक्स। मतलब कि ये एड्रेस बॉक्स है जहां पे हम कुछ भी जो भी हमें सर्च करना होता है उसका एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस हम लिखते हैं, उसका लिंक यहाँ पे देते हैं। ठीक है? क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट इसको और इस पूरे स्ट्रिप को, ये दिख रहा है आपको पूरा यहां से यहां तक जो स्ट्रिप दिख रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड एड्रेस बार। क्या बोलते हैं इसको? एड्रेस बार कहते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। और ये जो एड्रेस बार है उसमें लेफ्ट है एंड राइट है, कुछ बटन दिख रहे होंगे आपको, लेफ्ट राइट और ये सब चीजें विजिबल है बच्चों? यस सर। सो व्हाट इज दिस? बैक बटन। आपको बैक जाना है, दिस इज व्हाट? फॉरवर्ड बटन। दिस इज व्हाट? रिलोड बटन और रिफ्रेश बटन। अभी देखो मैं अभी यहाँ पे चला, इस पेज पे चला जाता हूँ मैं,
मैं अभी इस पेज पे चला जाता हूँ, एडमिशन कोर्सेज पे चला जाता हूँ, ठीक है, मैं इस पेज पे चला गया, क्लियर। अभी मैं इस पेज पे हूँ, मुझे वापस जहां से मैं यहाँ पे आया था उसी पेज पे मुझे वापस जाना है, बैक जाना है। तो देन व्हाट यू विल डू, यू हैव टू जस्ट व्हाट, click here, then you will again go at the home page or the first page, जहां से हम लोग आए थे वहां पे वापस चले जाए। अब जैसे देखिए, इफ यू वांट टू गो अगेन उसी पेज पे जहां से आप अभी बैक हुए उसी पेज पे वापस जाना चाहते हो, देन व्हाट यू विल डू, you have to just click on the which button, online students please confirm, फॉरवर्ड। Yes, sir. forward button. So when you will click here, then you will again see the same page, you know, जहां से हम लोग बैक हुए थे उसी पेज पे वापस आ जाए। रीलोड बटन क्या होता है, देखो अब इस पेज को हमें फिर से, मान लो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है या कुछ चीजें विजिबल नहीं होती है, या मान लो आपका नेटवर्क स्लो है तो आपको कुछ चीजें नहीं विजिबल हुए, कुछ पिक्चर्स नहीं दिखे यहाँ पे, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे रिलोड करते हो। क्या करते हो बच्चों, रिलोड बटन। जैसे देखिए अभी मैं रिलोड बटन पे क्लिक करता हूँ, क्या होगा देखो, रिलोड दिस पेज है ना, क्लिक करता हूँ, फिर से ये पेज क्या होगा, स्टार्टिंग से लोड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes. So this is what, this is now come to the another point, that is, इसके अलावा बच्चों जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है, और मान लीजिए उस वेबसाइट को फ्रिक्वेंटली यूज करना होता है, या फिर कह सकते हैं रिकर्सिवली यूज करना होता है, या जनरली हमेशा आपको यूज करना होता है। कुछ ऐसे वेबसाइट, जैसे आपके कॉलेज का वेबसाइट है, आप आई होप जनरली ओपन करते होगे ना, इंफॉर्मेशन के लिए, क्या अपडेशन के लिए, है ना। तो वैसे उस केस में आप क्या करोगे, उसको आप बुक मार्क कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों, बुक मार्क। व्हाट इज बुक मार्क? अभी देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है ना, यहाँ पे मैंने बुक मार्क करके रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, मुझे कोई भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। सो इसी को कहते हैं बुक मार्क। क्लियर है बच्चों? तो कैसे करते हैं देखो, जैसे मान लो मैंने कोई पेज यहाँ पे, मैंने कुछ यहाँ पे ओपन किया, सपोज इफ यू ओपन कोई भी वेबसाइट, मान लो मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे कोविड, है ना, कोविड का कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, सपोज इफ यू राइट हियर कोई भी वेबसाइट, सपोज यही लिंक है, सपोज करते हैं, या यही लिंक है बच्चों, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या करना है, बुक मार्क करना है। तो हम क्या करते हैं, इस पे जाएंगे, इस पे ओपन कर लिया पहले हमने। अब देखो ये कोविड का जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लाइन है, और इसे मुझे मान लो बराबर यूज करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल, यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर पे दिख रहा होगा एड्रेस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, बुक मार्क दिस टैब। विजिबल है बच्चों, बताना यस और नो। Yes, sir. Visible है। So when you click here, then what you will see? You will see the next link, that is add bookmark। क्या मिलेगा आपको, वहां से add bookmark का ऑप्शन मिलेगा आपको। एंड आपको क्या करना है, बुकमार्क करना है। आप add bookmark पे क्लिक करोगे, एंड जैसे ही क्लिक करोगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या विजिबल होगा आपको, क्या विजिबल होगा यहाँ पे, और आपको क्या करना है, डन कर देना है। क्या कर देना है बच्चों, डन पे। अब जैसे आप डन करोगे, देखो क्या होगा, जैसे हमने डन किया ना, अब ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे स्टार सिंबल क्या हो गया, ब्लू हो गया ना। Colorful blue color. सो कैसे पता चला ये बुकमार्क हो गया। अब देखो, अब कोई भी आप टैब, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखो मैं टैब ओपन करता हूँ, कुछ दिख रहा है आपको सेम, तो इसको बोलते हैं बुकमार्क। ये क्या है, बुकमार्क ऑप्शन टैब, ठीक है। जहां से आप जो भी बुकमार्क करोगे, जैसे मैंने 4 पेजेस को बुकमार्क करके रखा है, अब मुझे डायरेक्टली इमेज पे जाना, मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, मुझे इस पेज पे जाना है, मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा, मुझे लिंक टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। जैसे आप बुक में कैसे मार्क करते हो, आप Yes, sir. होगा ना, जब आप पेजेस होते किसी टॉपिक पे आप पढ़ रहे थे, अचानक किसी ने कॉल कर दिया, किसी ने बुला लिया आपको, आप क्या कर दो, उसके बीच में कुछ चीजें स्टिक फाइल जैसे कुछ होते वो लगा देते हो। क्यों लगा देते हो, कि फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। सो उसी तरह का बुक मार्क करते हैं, ठीक है। जैसे बुक में आप मार्क करते हो, वैसे यहाँ भी मार्क करते हैं, ठीक है बच्चों। Yes, sir. अब देखो, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो है सर्च इंजन। क्या है बच्चों, अभी देखो ये हम आपने देखा, ये जनरली मैंने डिस्कशन किया। आप लोग म्यूट कर लो बच्चों, पहले म्यूट कर लो प्लीज।
है ना, क्योंकि ओके ओके। सो देखिए, तो जनरली होता क्या है कि ये जनरली आपको हर एक ब्राउजर में मिलेंगे, चाहे आप कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लो, ठीक है, सारी चीजें में मिलेगी आपको। उसके अलावा क्या ये क्या है बच्चों, इसको हम विंडो कहते हैं, ब्राउजर का जो विंडो होता है वो है। अब इस विंडो में आपको कुछ दिख रहा होगा इस बच्चों सामने, क्या दिख रहा है आपको, गूगल, और यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं सर्च इंजन। क्या बोलते हैं बच्चों, सर्च इंजन। सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, नाउ सी, सर्च इंजन जो बच्चों होता है ये क्या होता है, एक तरह का वेब बेस्ड टूल है, एक टूल होता है जो हमारे ब्राउजर्स में जनरली होते हैं, ठीक है, और जिसे हम यूज करते हैं क्यों, कुछ भी सर्च करने के लिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए इंटरनेट से, या कुछ भी इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को सर्च करने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों, जो जनरली हर एक ब्राउजर में आपको अवेलेबल होगा, वो क्या है, सर्च इंजन होता है, एक टूल है जो कि आपके वेब ब्राउजर में बिल्ट होता है, ठीक है बच्चों। then come to the next point that is एक मिनट बच्चों, come next point, that is what are the examples of search engine, anybody please, any idea what are the types of search engine, or you can say the search engine examples। जैसे आपने सबसे फेमस बताओ क्या सुना होगा, गूगल का नाम सबने सुना है, या सुना, गूगल एक Yes. सर्च इंजन है। अभी देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं गूगल क्रोम और गूगल में, जब हम सिंपली गूगल की बात करते हैं, गूगल, सो दैट इज अ सर्च इंजन, एक कंपनी है जिसका अपना सर्च इंजन गूगल नाम से ही है, और जहां पे कुछ भी लिखते हैं तो हम सर्च कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, बट जब हम गूगल क्रोम की बात करते हैं, दैट इज अ वेब ब्राउजर। क्लियर है बच्चों, उसको हम वेब ब्राउजर कहते हैं। वैसे बिंग भी आपका क्या है, सर्च इंजन है। याहू का सर्च इंजन कौन सा है, याहू नाम से है। ask.com है ना, बहुत सारे आपके जो है क्या है, सर्च इंजन है। तो जनरली मुझे जहां तक लगता है कि मैक्सिमम लोग गूगल, याहू यही सब यूज करते हैं, है ना। तो ये जनरली कहाँ मिलेगा आपको, हर एक ब्राउजर में मिलेगा। जैसे इस ब्राउजर में भी आपने देखा, ये है ना, विजिबल है बच्चों, ये सर्च इंजन। अब यहाँ पे कुछ भी लिखो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे महात्मा गांधी, मैंने लिख के सर्च मारा, जो भी इंफॉर्मेशन है मिल जाएगा, एक्सेस हो जाएगा ना। ऑनलाइन स्टूडेंट विजिबल होगा, Yes, sir. ये एक टूल है ना जहां से हम एक्सेस करते हैं किसी भी चीज इंफॉर्मेशन को, जिसके हेल्प से। सो दैट्स व्हाई इट इज अ सर्च इंजन, इज अ टूल व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेस और सर्च और लोकेट एनी इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चों डिस्कशन करते हैं हम लोग, दैट इज वेब पेजेस, वेबसाइट्स एंड होम पेजेस। व्हाट इज वेब पेजेस, टेल मी व्हाट इज वेब पेजेस बच्चों। So as you have seen in books, there are several pages, you know, yes or no, there are several pages. So page 1, page 2, that is marked upward corner, you know, right corner पे आपको mark लिखा था, page 1, page 2, page 3. So these are the pages of the book, or you can say when you say that the document, or you can say you have seen MS Word file, आपने MS Word पे काम किया आप लोगों ने, Yes, sir. काम किया है। तो वहां पे एक MS वर्ड होता है, क्या एक फाइल होता है, उसके अंदर बहुत सारे क्या मिलते हैं आपको, पेजेस मिलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं वहां पे, डॉक्यूमेंट कहते हैं वहां पे। जिस तरह से MS वर्ड पे जो है आपने बनाया हुआ, MS वर्ड का पेजेस बनाया होगा, बहुत सारे काम किया होगा, तो वहां पे हर एक पेज को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं, है ना, एज अ डॉक्यूमेंट ट्रीट करते हैं। तो उसी तरह का बच्चों, जिस तरह से हमारा पेज, हमारे बुक में पेजेस में क्या क्या होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, कुछ इमेजेस होते हैं, है ना, वैसे ही मान लो बुक्स में के अलावा वैसे ही जो है आप भी जब बनाते हो, क्या बनाते हो, वर्ड फाइल बनाते हो कोई भी, तो वहां पे भी आप चाहोगे तो टेक्स्ट लिख सकते हो, इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो, कुछ वीडियो भी कर सकते हो, आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज है। तो वैसे ही जिस तरह से आपका डॉक्यूमेंट होता है MS वर्ड में, या सुनो, वैसे ही डॉक्यूमेंट जो हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो पेजेस अवेलेबल है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वेब पेज कहते हैं। क्लियर है। अब जितने भी पेजेस ओपन करते हो, जैसे देखो अभी मैं शो करता हूँ आपको, अभी देखो ये मैं ओपन करता हूँ, जैसे मैंने गांधी क्या है 150 लिखा, मैंने इस पे लाइन पे क्लिक किया, अब देखो ये पेज ओपन होगा, ओपन हुआ, यस और नो, यस सर। ये क्या है, Yes. वेब पेज है, ये क्या है बच्चों, वेब पेज है।
यस और नो? यस सर। तो वेब पेज क्या है? एक तरह का डॉक्यूमेंट। अब देखोगे, गौर से देखो, इस पेज में क्या क्या मिलेंगे आपको, ये बताओ क्या क्या मिलेंगे इस पेज में, क्या क्या मिलेंगे आपको? देखो गौर से, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स पे ये भी एक डॉक्यूमेंट्स ही है ना, लेकिन ये क्या है? इंटरनेट पे अवेलेबल है, सो इसको क्या कहते हैं हम लोग? वेब पेज कहते हैं। अब इसमें है क्या, देखो बच्चों, कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे आपको, कुछ वीडियो है, कुछ एनिमेशंस है, कुछ टेक्स्ट दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये टेक्स्ट है देखो बच्चों, ये पिक्चर है, इमेज है, ये देखो, इसको देखो बच्चों, ये क्या है? कुछ वीडियो के लिंक भी है, यस सुनो, है ना? तो हमारे पास जो सिंपली बुक में जो पेजेस होते हैं वहां पे क्या सिंपल आपको या तो टेक्स्ट मिलेंगे या फिर क्या मिलेंगे बच्चों? इमेज मिलेंगे। बट जो हमारे पास इंटरनेट पे जो डॉक्यूमेंट होता है या पेजेस होता है, उस पे क्या होंगे? वीडियो भी हो सकते हैं, ऑडियो भी हो सकते हैं, कोई हाइपर लिंक हो सकता है, कोई हाइपर टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे वीडियो एनिमेशंस हो सकते हैं, यस और नो? सो ये हमारा वेब पेजेस कहलाता है। ठीक है बच्चों? तो simply if you want to define a web page, so you can say the documents which are available on the internet is called web pages. So it can have text, audio, video, image, etc. है ना? इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्लियर है बच्चों? सो नाउ अब देखो बच्चों, नेक्स्ट बच्चों चीजें पर जो क्या है, वेबसाइट क्या होता है? नेक्स्ट क्या है बच्चों? वेबसाइट। व्हाट इज वेबसाइट? कोई बता सकते हो व्हाट इज वेबसाइट? व्हाट इज वेबसाइट बच्चों, बताना। वेब पेज का कलेक्शन को ही वेबसाइट का। यस यस, वेरी गुड। द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जैसे आप देखो, मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूं पहले, ठीक है? मतलब जैसे देखो, आपने बहुत सारे वेब पेजेस बना दिया है ना, और आप उसको कलेक्ट कर दोगे, मतलब क्या कर दोगे उसको, है ना? देखो जैसे आपके कॉलेज का ही वेबसाइट में ओपन करता हूं, अब ये इसी को देखो ना, ये क्या एक तरह का वेबसाइट है, देखो गौर से, ये जो है ना, ये क्या है? वेबसाइट है एक तरह का, है ना बच्चों? अब यहां से देखो, ये वेबसाइट है, तो इस पे बहुत सारे पेजेस हैं कि नहीं? देखो क्या है, द महात्मा नाम से बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, फोटो, ऑडियो, वीडियो, कार्टून्स। इसके बाद क्या है? ये भी एक लिंक है, इस पे क्लिक करो, देखो ये भी एक पेज ओपन होगा। सेलिब्रेशन पे क्लिक करोगे, ये भी एक ओपन होगा, देखो, है ना? अब देखो मैं इस पे क्या है, कार्यांजलि पे जाता हूँ, इस पे भी आपको बहुत सारे पेजेस मिलेंगे, ऐसा ना? गांधीपीडिया पे, तो ये सारे क्या लिंक है ना, ये सारे वेब पेजेस हैं, जितने भी मैं ओपन कर रहा हूँ सारे क्या है? वेब पेज है। उसी को मिला के क्या बनता है बच्चों? वेबसाइट्स बनते हैं। सो वेबसाइट इज व्हाट? समथिंग दैट इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट? वेब पेजेस। वेब पेज, है ना? जहां पे आप एक पेज पे हो, उससे आप कहीं और दूसरे पेज पे भी जा सकते हो, है ना? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ओके ओके, सो नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज होम पेज। व्हाट इज होम पेज? टेल मी एनीवन? सर किसी वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो प्लीज चलो, मैं आपके first कॉलेज का ही वेबसाइट ओपन करता हूं मैं, ठीक है? सबसे सिंपल है ना, आपके कॉलेज का वेबसाइट में ओपन करता हूं। अब देखो क्या है, कभी भी आप अपने कॉलेज का वेबसाइट ओपन करोगे, आपको यही पेज डिस्प्ले होगा, यस और नो? होगा या नहीं बताओ? सो द फर्स्ट पेज व्हिच अपीयर्स व्हेन यू ओपन एनी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। वो क्या कहलाता है बच्चों? होम पेज कहलाता है। क्लियर है? जो फर्स्ट पेज आप बच्चों ओपन करते हो, वो क्या कहलाता है आपका? होम पेज। ठीक है? ठीक है, किसी वेबसाइट में जैसे देखो होम लिखा हुआ है ना, यहां से आप किसी अदर पेज पे भी जा सकते हो, लेकिन ये द फर्स्ट पेज व्हिच अपीयर्स इज कॉल्ड होम पेज। और ये देखो क्या वेबसाइट पे, देखो आप, वेबसाइट है ना, बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, बहुत सारे पेजेस का लिंक दिया हुआ है, हर एक कहीं भी क्लिक करोगे बच्चों, इस पे मैंने क्लिक किया तो देखो, या इस पे मैंने क्लिक किया तो देखो ये कोई पेज ओपन हो जाएगा, है ना? तो ये सब क्या है बताओ? सारे पेजेस है ना, और उसको मिला के क्या बनाते हैं? वेबसाइट बनाते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर बच्चों, बताना। yes sir. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? HTTP। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? HTTP। इट इज व्हाट? HTTP, है ना? इट इज HTTP। क्लियर है बच्चों? यस और नो? सो देखिए, अभी मैंने वेबसाइट ओपन किया है, इसमें देखो आपको डिस्प्ले होगा, कुछ विजिबल है बच्चों? यहाँ पे कुछ HTTP लिखा हुआ, विजिबल है यहाँ पे HTTP। अब
अभी एस पे ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, केवल HTTP को देखते हैं, है ना? यस और नो? यस सर। सो Yes, व्हाट sir. इज HTTP? सो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, बताना? दैट इज अ वेरी गुड। एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? सर वही होगा हाइपरटेक्स्ट। व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट? Hypertext transfer protocol, sir. Yourself. कौन था ये? देखो फिर से वही बात। ठीक है बच्चों, ऑडिबल है अब आप लोगों को मेरी आवाज? Yes, sir. ओके। सो मैंने अभी क्या बोला, HTTP की बात कर रहा था मैंने। देखो ये HTTP का फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक तरह का प्रोटोकॉल है। क्या है? प्रोटोकॉल है। अब बच्चों एक कंफ्यूजन होगा आपके मन में कि व्हाट इज प्रोटोकॉल। नया टर्म इंक्लूड हुआ, व्हाट इज प्रोटोकॉल। तो सिंपली बच्चों इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे कंप्यूटर नेटवर्क में कि प्रोटोकॉल होता क्या है, ठीक है? बट मैं ब्रीफ में एक बता देता हूँ प्रोटोकॉल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीजें, कोई भी सर्विसेज आप यूज करते हो, आप रोड पे ही चलते हो, ट्रैफिक रूल अप्लाई करते हो, यूज करते हो कि लेफ्ट से चलना है, लेफ्ट राइट देख के चलना है। क्यों यूज करते हैं बताओ? एनीवन? व्हाई वी यूज ट्रैफिक रूल? एनीवन? सेफ रहने के लिए सर। फॉर सेफ्टी पर्पस। वेरी गुड, फॉर सेफ्टी पर्पस, है ना? ताकि प्रोटोकॉल यूज करते हैं क्योंकि आपको रोड पे चलना है, यू हैव टू फॉलो दैट प्रोटोकॉल ताकि हम सेफ रहें, है ना? वैसे ही इंटरनेट पे जब हम इंटरनेट के सर्विसेज को यूज करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं, इंटरनेट पे ईमेल यूज, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, तो उसे भी यूज करने के लिए प्रॉपर सेटअप रूल दिया हुआ है कि ऐसे कर चलना है, ऐसे करना है, ऐसे सर्च करना है ना? तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है? इंटरनेट पे आपको एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट को यूज करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। क्लियर है बच्चों? दैट इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। बट उस पर हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं बच्चों। तो HTTP तो वो भी एक तरह का क्या है? प्रोटोकॉल ही है। लेकिन ये कौन सा प्रोटोकॉल है बच्चों? इट इज द फर्स्ट प्रोटोकॉल व्हेन यू यूज एनी सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट पे कुछ भी चीजें सर्च करते हो, सबसे पहला प्रोटोकॉल जो वर्क में आता है वो क्या आपका? HTTP। क्या आता है बच्चों? HTTP। ठीक है? क्यों आता है? देखो ये हमें हेल्प करता है जब हम किसी, मान लो एक्चुअली हम सर्च क्यों करते हैं? हम सर्च क्यों करते हैं कुछ भी? गूगल सर्च कुछ इंफॉर्मेशन के लिए ना करते हैं, यस और नो? टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, वी दैट्स व्हाई वी सर्च। यस, यदि हम ऐसा सर्च करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, तो जिस चीज के लिए हम सर्च कर रहे हैं वहां तक हमें पहुंचाएगा कौन? उसके लिए एक्सेसिबल हमें कौन बनाता है? ये HTTP। वो हमें उस पेज तक को एक्सेस करने में हेल्प करता है। क्लियर है बच्चों? that help in accessing the web pages. So let's see now the definition or important point about. So देखिए सिंपल बच्चों, ये सिंपल चीजें हैं, है ना? अब देखिए क्या है? the main protocol of the web browser is hypertext transfer protocol, that is shortly known as HTTP. okay, to get on web pages. तो web pages पे हम पहुंचने के लिए इसका यूज करते हैं। This protocol enables browser to get info and access the web pages, और है ना? मतलब ये हमें वेब पेजेस को एक्सेस करने में या वहां से इंफॉर्मेशन गेन करने में हमें हेल्प करता है। कौन? दिस प्रोटोकॉल, है ना? कहां, किसके हेल्प से? ब्राउजर के हेल्प से। ठीक है? सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट HTTP। अब देखो HTTP दो पार्ट पे काम करता है बच्चों, ध्यान से सुनना। HTTP दो पार्ट में काम करता है। द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? जैसे एक्चुअली हम क्या होते हैं, देखो अब पहले ये समझ लो बच्चों, जैसे हम मान लीजिए आप अपने कॉलेज के ही वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो। क्लियर है? अब जो कॉलेज का जो वेबसाइट है बच्चों, वो है क्या? उसको कहीं ना कहीं उसका इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे स्टोर होगा, www पे, उसको हम सर्वर कहते हैं जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। और हम अपने कंप्यूटर के हेल्प से क्या करते हैं बच्चों? उसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम अपने कंप्यूटर से एक्सेस करना चाहते हैं या लैपटॉप से या मोबाइल से, तो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में क्या होना चाहिए? वेब ब्राउजर होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम एक्सेस करते हैं। सो दैट वेब ब्राउजर इज कॉल्ड क्लाइंट। क्या बोलते हैं उसे बच्चों?
क्लाइंट कहते हैं। Client. हमारे कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर जो भी चीजें सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से एक्सेस करते हुए ब्राउजर से क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? एंड द Yes, sir. सर्वर, सर्वर क्या होता है? सपोज कीजिए जहां पे इस वेबसाइट का अपना एक प्लेस होगा ना इंटरनेट पे, जहां पे इसका इंफॉर्मेशन स्टोर होगा और जहां से हम एक्सेस करते हैं उसको हम सर्वर कहते हैं। यानी हम सर्वर से सर्विस लेते हैं, वो हमें सर्विस देता है इसलिए वो सर्वर है, हम सर्विस लेते हैं, हम क्लाइंट हो गए उससे। ठीक है, नाउ सी, जब भी हम कुछ सर्च करते हैं बच्चों तो दो पार्ट में चीजें, हम जैसे मैंने लिखा बच्चों ऐसा, हमने अभी सिंपल ऐसा लिखा बच्चों, सिंपल हमने लिखा ये एंटर किया है ऐसे। अब जैसे एंटर किया आपको डिस्प्ले हो जाता है बच्चों, ये सुनो इंफॉर्मेशन। लेकिन ये चीजें बच्चों इंटरनली क्या होता है, जब हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए यही एक टाइप है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कुछ भी टाइप करता हूँ, मान लो सीमेज या कुछ भी, या मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आयरन मैन, ठीक है, आयरन मैन सपोज करता हूँ। अब मैंने जो सर्च किया बच्चों यहाँ पे आयरन मैन, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम सर्च करेंगे एंटर क्लिक करेंगे बच्चों तो आयरन मैन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बट इंटरनली जब हमने यहाँ पे आयरन मैन टाइप किया और जैसे हमने सर्च बटन को क्लिक किया, एक्चुअली हम करते क्या है बच्चों, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं किसको, देखो क्लाइंट हमारे सिस्टम से सर्च करते हैं, ब्राउजर सर्च करते हैं, वो किसके पास जाता है, सर्वर के पास जाता है रिक्वेस्ट के फॉर्म में। जैसे सर्वर को वो मिला कि अच्छा ये इंफॉर्मेशन चाह रहा है ना, देन वो उस इंफॉर्मेशन को ढूंढ के कहाँ देता है, वो अगेन क्लाइंट को एज ए रिस्पॉन्स भेजता है वो। जैसे मैं आपसे कुछ पूछूंगा आप मुझे रिप्लाई दोगे ना उसका, तो वही जो रिप्लाई होता है वही क्या होता है बच्चों, रिस्पॉन्स के फॉर्म में होता है। क्या होता है बच्चों, रिस्पॉन्स के फॉर्म में। क्लियर है बच्चों, बताना। तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा बच्चों, है ना, विजिबल है? Yes, sir. सो ये क्या है बताओ, ये जो मैंने बताया कि अब क्लाइंट कौन कौन से हो सकते हैं, जनरली हम लोग देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। अब जैसे मान लो कोई आपसे पूछे, है ना, जैसे आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कंप्यूटर, कुछ ऐसा पर्सन पूछे जिसको इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप उसको कैसे रिप्लाई दोगे? सिंपली बोलोगे कंप्यूटर एक मशीन है, Computer is a इसमें ये काम machine. करते हैं, ऐसा कुछ बोलोगे। लेकिन वही चीजें आपसे कोई टीचर पूछे जिनको आपसे ज्यादा नॉलेज है, वो आपसे पूछे तो आप सिंपली ये बोल दोगे क्या ऐसा ऐसा होता है, कुछ एक प्रॉपर डेफिनेशन दोगे ना। वैसे ही बच्चों जब हम जनरली बातचीत करते हैं ना, तो क्लाइंट का मतलब लोकल कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का मतलब, लेकिन एक्चुअली कंप्यूटर नहीं होता है। एक्चुअली हमारे जो कंप्यूटर के अंदर वेब ब्राउजर यूज करते हैं वो क्लाइंट होता है। ठीक है बच्चों, जो एक तरह का कनेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर को सर्वर से, और उसी के हेल्प से हम क्या करते हैं बच्चों, एक्सेस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जनरली हम क्लाइंट बोले तो कभी कभी आप कंप्यूटर भी बोल दो तो चलेगा, है ना, लैपटॉप बोल दो तो चलेगा, मोबाइल बोलो चलेगा, लेकिन एक्चुअली में क्लाइंट होता कौन है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो वेब ब्राउजर होता है जिसके हेल्प से हम एक्सेस करते हैं, दैट इज द क्लाइंट। क्लियर है बच्चों, यस सुनो? Yes, sir. Yes, sir. कैसे काम होता है, जैसे मैंने कुछ सर्च मारा, मान लो मैंने कुछ लिखा वहां पे सीमेज.in अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से, ठीक है, वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा, इंटरनेट के हेल्प से वो रिक्वेस्ट जाएगा वेब सर्वर के पास, मतलब उस वेबसाइट का जो सर्वर है ना, उसके पास इंफॉर्मेशन जाएगा। और ये हेल्प कौन करेगा मुझे, HTTP। कौन हेल्प करेगा बच्चों, HTTP के हेल्प से वो रिक्वेस्ट कहां जाएगा, उस इंटरनेट के हेल्प से वेब सर्वर के पास जाएगा। एंड वेब सर्वर के पास बच्चों अपना एक क्या होता है, डेटाबेस होता है। जैसे मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में मेमोरी है ना, जहां पर हम डेटा को स्टोर करते हैं, वैसे ही वेब सर्वर जो होता है, जो सर्वर, उसके पास भी एक डेटाबेस जहां पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और जिस इंफॉर्मेशन हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वेब सर्वर को जैसे रिक्वेस्ट मिलता है, वो इंफॉर्मेशन कहां से ढूंढता है, वो इस डेटाबेस से ढूंढ के हमें वापस भेजता है। किसके हेल्प से, अगेन इंटरनेट के हेल्प से भेजता है। किस फॉर्म में भेजता है, एज ए HTTP। यहाँ पे बच्चों करेक्ट कर लेना, यहाँ पे HTTP होगा, क्या होगा, HTML नहीं होगा, यहाँ पे HTTP होगा। तो HTTP रिस्पॉन्स के फॉर्म में बच्चों वो भेजता है। क्लियर है, म्यूट कर लीजिए, है ना। तो एज ए रिस्पॉन्स ये भेजता है। सो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द HTTP प्रोटोकॉल, दैट इज फर्स्ट वन इज व्हाट, HTTP रिक्वेस्ट। HTTP request and तो वो क्या है, HTTP वो जब हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो सर्वर के पास आता है, किसके हेल्प से, इंटरनेट के हेल्प से। यानी HTTP हमें रिक्वेस्ट भेजने में हेल्प करता है, तभी तो हम कनेक्ट कर पाते हैं ना सर्वर से। और उसके बाद वो फिर वापस हमें एज अ रिजल्ट के फॉर्म में, रिस्पॉन्स के फॉर्म में भेजता है हमें जो हमें चाहिए, है ना। तो उसको बोलते हैं HTTP क्या बोलते हैं इसको, HTTP रिस्पॉन्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों, बताना कोई डाउट हो तो, यस सुनो।
एनी डाउट? No, sir. No, sir. सो डाउट नहीं है आप लोग को? कोई भी डाउट नहीं है? कुछ तो होगा डाउट, कुछ तो पूछना होगा, कुछ तो आपको नया चीज पूछना होगा, हमसे पूछ सकते हो, है ना? बताओ, कोई डाउट नहीं है? ऐसा कुछ है आपके मन में जो आपको पूछना है, जो आप पूछना चाहते हो? कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे पूछना चाहते हैं बट नहीं पूछते हैं, तो ऐसा नहीं है बच्चों, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो, ठीक है, किसी को भी। सर, यस प्लीज। hypertext means? हाँ, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। हाइपर टेक्स्ट, यू नो व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट? मीन्स जैसे मान लीजिए ये वेबसाइट को आप, मैं वेबसाइट शो करता हूँ बच्चों, ठीक है, ये वेबसाइट आपका कॉलेज का वेबसाइट है ना? ये बताओ मुझे, ये क्या है? ये होम जो लिखा हुआ या ये सब क्या है बताओ? टेक्स्ट ही है ना? एडमिन, Yes. ये टेक्स्ट ही है ना? उस पर हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है बच्चों बताओ? जब इस पे हम क्लिक करते हैं, ऐसी वेबसाइट पे, मान लो सपोज इफ वी क्लिक एट दिस पॉइंट, इस टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है? क्लिक किया, हम कहाँ चले गए? एक नए पेज पे चले गए, यस और नो? सो दैट Yes, इज sir. कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। मतलब किसी टेक्स्ट, ऐसा टेक्स्ट जिस पे हम क्लिक करते हैं तो हम किसी वेब पेज या किसी अदर वेबसाइट या किसी अदर लोकेशन पे, रिसोर्स पे हम पहुंच जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। क्लियर है? Yes, sir. एक टर्म आता है बच्चों, हाइपर लिंक आता है टर्म, हाइपर लिंक, है ना? वो कहाँ यूज करते हैं, किसी को पता है? एनीवन? हाइपर लिंक हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं इसको बच्चों? आपने एमएस वर्ड में, वर्ड फाइल में आपने हाइपर लिंक यूज किया होगा, वहां पे एक सेक्शन होता है हाइपर लिंक के लिए। क्या होता है? जैसे आप कोई वर्ड फाइल बनाते हो, वहां पे आप लिंक डाल दिया आपने, अब कोई उस लिंक पे क्लिक करेगा तो क्या होगा? आप किसी लोकेशन या किसी वेबसाइट पे चले जाओगे। हाइपर टेक्स्ट के जैसा ही होता है, बट यहाँ पे टेक्स्ट होता है, उस पर क्लिक करते हैं। वैसे हाइपर मीडिया भी हो सकता है बच्चों, जैसे कोई मान लीजिए इमेज है ना, तो उस पर आप क्लिक करते हैं तो किसी चीज पे आप चले जाते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। तो उसी तरह, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा? हम ट्विटर पे चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा बच्चों? फेसबुक पे चले जाएंगे। तो एक तरह का इमेज हुआ जहां पे हम क्लिक करते हैं, तो ये हाइपर मीडिया कह सकते हैं इसको, एक तरह का इमेज है, या फिर इसमें, है ना, जैसे हाइपर टेक्स्ट हुआ वैसे ही। अब जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा, देखो हम कुछ यहाँ पे एक्सेस करने लगे। अब देखो, बैक करता हूं मैं इसको। वैसे आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, या सुनो? Yes, sir. देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्या होगा? अगेन हम होम पेज पे चले जाएंगे, चले गए ना? तो टेक्स्ट पे जब क्लिक करते हैं वो क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट। टेक्स्ट पे क्लिक करने पे किसी अदर चीज पे चले जाते हैं, वो हाइपर टेक्स्ट। यदि हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो कहीं चले, ये लिंक है ना बच्चों, इस पे क्लिक करूंगा तो कहीं चले जाएंगे हम लोग इस वेबसाइट पे, इस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। इट इज अ हाइपर लिंक, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया। यदि हम किसी पिक्चर पे क्लिक करते हैं और इमेज पे तब चले जाते हैं तो उसको हाइपर मीडिया कह सकते हैं, हाइपर इमेज। ठीक है, क्लियर बच्चों? ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। सो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताना। एक्चुअली नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, HTML स्टार्ट करने वाले। अब ये सारी चीजें मैंने क्यों बताया, कुछ तो रीजन होगा बच्चों। रीजन ये है कि जब मैंने इनकाउंटर किया, बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट किया, तो मुझे लगा कि उन लोगों को बेसिक जो है कंप्यूटर स्किल, यानी जो इंटरनेट के बारे में बेसिक जानकारी नहीं है उनके पास। और चूंकि हम जो वेब डिजाइनिंग करते हैं वो इंटरनेट के लिए ही करते हैं ना, और आपको बेसिक के बारे में पता नहीं है तो देन इट विल बी प्रॉब्लम, है ना, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपके लिए फ्यूचर में। तो इसीलिए मैंने बेसिक चीजें बता दिया जो आपको काम आने वाला है। क्लियर है एवरीवन? यस सर। तो Yes, नेक्स्ट sir. क्लासेस पे जब भी क्लासेस, सर। यस प्लीज सर मेरा अटेंडेंस नहीं बना था, लेट से क्लास ज्वाइनिंग किए कोई थे। बात, तो जो भी लेट से आए वो बता देंगे, लेकिन कोशिश कीजिए आप लोग जो 5 मिनट के अंदर ज्वाइन कर लिया, ठीक है? ओके सर। ओके, सो सर, यस प्लीज। सर सर्वर बिजी कब होता है सर? सर्वर बिजी कभी कभी क्या होता है ना, देखिए आप जिस सर्वर पे आप, यानी जिसके सर्वर, मान लीजिए ऐसा हो आपके कॉलेज का वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट पे मान लीजिए बहुत लोग, कुछ लिमिटेशंस होता है, इतने लोग एक बार में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो ऐसा होगा, उसमें बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे, एक साथ एक्सेस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। मान लो उसका स्ट्रेंथ है कि 1000 पर्सन एक बार में विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को, और मान लो 1001 हो गए, 2 हो गए, 5000 हो गए, तो उस केस में क्या होगा? आप ट्राई करोगे, आपको क्या मिलेगा कि सर्वर इज बिजी, क्योंकि वो स्ट्रेंथ से बाहर चला गया। जब कभी रिजल्ट निकलता है, आपने देखा होगा, आपके मैट्रिकुलेशन का या फिर 10+2 का रिजल्ट आया होगा, तो यस सर, एडमिट कार्ड नहीं शो कर रहा था। कभी कभी ऐसा होता है, क्यों? जब एक ही बार में
बहुत सारे लोग ट्राई करना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, जितना उसका कैपेसिटी उतना कैप्चर कर लिया, बट क्या होता है उस केस में बाकी जो एक्स्ट्रा करना शुरू करते हैं तो उनको बताता है सर्वर बिजी है। या कभी कभी ऐसा होता है कि मेंटेनेंस चल रहा हो, कोई सर्वर पे काम चल रहा हो, ऐसा भी तो होता है, तो बिजी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, सो और कोई डाउट हो तो रोल में बताना जो बाद में ज्वाइन किए हो। 1 मिनट बच्चों, मैं 1 मिनट 5 sir. करता हूँ, जस्ट मिनट। यस, रोल नंबर 5। Yes sir. यस, नेक्स्ट। सो 6 मैंने बना दिया था, 12 बना दिया था मैंने, 13 छूटा हुआ, 13 मैंने बना दिया था, ठीक है। 4 है ना, 10 ऑलरेडी है, 1 रोल नंबर 1 ऑलरेडी बना हुआ है, 7 ऑलरेडी बना हुआ है, 3 रोल नंबर 3 कहाँ है पवन? यस सर, 3 सर। रोल नंबर 5 ऑलरेडी क्रिएट। तो इतने लोग थे, रोल प्रेजेंट है। क्लियर बच्चों? सो यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एंड द नेक्स्ट सेशन, सो बी प्रिपेयर्ड। आप लोग पास लैपटॉप होगा? No sir, अभी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ऐसे प्रैक्टिकल चीजें करवाऊंगा, आप लोग केयरफुली ध्यान देना कि सारी चीजें जो है HTML प्रैक्टिकल की चीजें हैं, ठीक है। Yes sir. एक्सप्लेन भी करूंगा और मैं प्रैक्टिकल चीजें भी बताऊंगा आपको, कैसे हम लोग वेब पेजेस बनाते हैं। लेकिन उसके लिए बेसिक फंडामेंटल आपको जानना होगा ना कि HTML क्या होता है, HTML के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, HTML से हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना, क्यों यूज करते हैं, इन सब चीजों को समझना होगा। तो जैसे देखिए, आपने सी प्रोग्रामिंग का नाम सुना होगा, सी प्रोग्रामिंग, C++, जावा, पाइथन, ऐसे सुना होगा। Yes sir. Yes sir. Yes sir. हेल्प हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं ना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वैसे ही जो HTML भी एक तरह का क्या है, लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कह सकते हो। लेकिन इसका यूज हम कहाँ करते हैं? वेबसाइट और वेब पेजेस बनाने में यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। वेब डिजाइनिंग में यूज करते हैं, जहां पे हम वेब पेजेस या वेबसाइट्स बनाते हैं तो वहां यूज करते हैं। क्लियर है? Yes sir. ओके, सो एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। सर मेरा भी टेंडेंस, ओके ओके, रोल नंबर 3 मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। Okay, thank you sir. ओके, वेलकम।